गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और मैं आपको आज के इस वीडियो क्लिप में लिए चलता हूँ। थोड़ी ग्रामर सेक्शन को मैं यहाँ स्टॉप कर दे रहा हूँ, चूँकि अब तक का पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन पर बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आपने देखा, नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड। बट अब स्टूडेंट्स लोगों की, खास करके मेरे जो व्यूअर्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी टेलीफोनिक सजेशंस ये आते रहे, सर ग्रामेटिकल अप्रोच तो हो जाती है बट हमारी स्पीकिंग की स्किल नहीं डेवलप हो पाती है, हम बोल नहीं पाते थॉरली इन इंग्लिश। जस्ट आफ्टर एंटरिंग द क्लास आई फील अनएबल माई सेल्फ टू एक्सप्रेस वट एवर आई वॉन्ट टू टीच माई स्टूडेंट्स। सो give some suggestions and also shoot some video clips, especially how on the topic how to enhance our speaking skill, especially regarding that very demand, regarding that very speaking ability. I have thought some ideas and I have also tried my best to benefit you most and highly. So come on, let us see on the board, because some words have been written here. At the top here to the left side, I have mentioned here, learn speaking English through, and a single arrow mark has been here mentioned. You find here it has been mentioned double arrow mark, double line, horizontal two lines have been already drawn and one arrow sign has been already here drawn. So enrich skills with skills in schools. Enrich skills with skills in schools. Number 3 here, but this area is blank here. And number 4 here is, it is mentioned SPEAK. Vertically all these letters have been mentioned and all these letters have been mentioned in the descending order. S at the top, it has been mentioned. P, the next letter P is mentioned here just below it. The next letter E is mentioned below P, and A and K. Now this single arrow shows that this topic will be discussed first in this video clip. The second, the two lines in the arrow shows that it will be discussed secondly, means on the second position, and 3 line indicates that the words and the topic that would be discussed here in the blank zone, in the blank area, blank space here, would be discussed on the third time, means on the third step, as the third step. And here 4 lines indicate that these letters SPEAK will be discussed on the 4th step. So now come on, I would like to draw your attention to the first step especially. Do you permit me to already express or already communicate or already talk or speak everything thoroughly in English, or bilingually may I start here? Okay, so because some of the viewers, some of the subscribers feel themselves unable to understand, to conceive whatever is spoken here, so I would like to speak बायलिंगुअली, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो चले फर्स्ट टॉपिक की ओर मैं लेकर चलता हूं। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये हमारा लर्न स्पीकिंग इंग्लिश थ्रू, एंड जस्ट बिलो थ्रू इट हैज बीन ड्रॉन 2 bubbles. Here 2 bubbles, and in the left bubble it has been mentioned listening, 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 and in the right bubble it has been mentioned reading. So are you able to understand what it means? Learn is verb. आप सीखें. What? Speaking सीखें V4. Working as the gerund in coming in place of here learn. Learn speaking what? English noun. Speaking is V4 here gerund, and English is your object to the gerund. Speaking English through is your preposition. Through what? Listening, V4 gerund, and reading V4 gerund. ये एक सेंटेंस मैंने दिया कि आप सीखें इंग्लिश।
चूंकि अक्सर व्यूअर्स की ये कमेंट आती रही कि सर ग्रामेटिकल अप्रोच तो हो जाती है, मैंने शुरू में ही वीडियो क्लिप में कहा कि सर ग्रामेटिकल अप्रोच तो हो जाती है, एरर को डिटेक्ट करना सीख गए हैं या सीख जा रहे हैं हम, बट हम थॉरली इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे हैं बच्चों को कन्विंस करने के दौरान, या कहीं अगर आवश्यकता होती है हमें इंटरव्यू अटेंड करने के दौरान, या कहीं पर भी हमें जब इंग्लिश में कम्युनिकेट करना हो तो उसमें हमें दिक्कत हो जाती है। सर स्पीकिंग स्किल पर विशेष करके कुछ वीडियो क्लिप्स दिए जाएं। इसलिए काफी चिंतन मनन करने के बाद वो जो मैंने इनोवेटिव अप्रोच के साथ मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं इस वीडियो क्लिप में, वो ये रहा कि लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग करना सीखें अंग्रेजी। किसी बुक के अंदर मेंशन किए गए सेंटेंसेज को रट करके कभी आप इंग्लिश बोल पाना आपके लिए संभव नहीं है, आप कभी सक्षम नहीं हो पाएंगे। सेंटेंस को जहां अगर आपने रटना सीख लिया, तो रटना नहीं है, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं लेकर चल रहा हूं, आपको सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसको रटना नहीं है। वो कैसे रटना नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण, बड़ा ही इंटरेस्टिंग उदाहरण आपको मैं देने जा रहा हूं आपको जस्ट आगे। सो लर्न, आप सीखें स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखें थ्रू प्रीपोजिशन। किसके माध्यम से? थ्रू एनी बुक, थ्रू एनी फ्रेंड, थ्रू एनी टीचर? नो, किसी शिक्षक के माध्यम से नहीं सीखना है आपको, किसी दोस्त के माध्यम से भी नहीं, किसी बुक के माध्यम से भी नहीं। फिर किस चीज के माध्यम से? लिसनिंग, सुनने के माध्यम से, एंड देन राइटिंग। तब उसके बाद रीडिंग, सॉरी नॉट राइटिंग, देन रीडिंग। फर्स्ट लिसनिंग एंड देन रीडिंग। यह लिसनिंग और रीडिंग कैसे? एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एकदम न्यूली बॉर्न बेबी ने जन्म लिया है, बिल्कुल, और अभी सपोज कीजिए न्यूली बॉर्न बेबी ने, बिल्कुल एक न्यूली बॉर्न इन्फेंट, एक प्यारा सा छोटा शिशु इन्फेंट जो अभी अपनी इन्फेंसी की अवस्था में है, अपनी मां के गर्भ से, अपनी मां के उम्र से बाहर वो आया है, और वो धीरे धीरे समय बिताता है। वो बच्चा जब बिल्कुल इन्फेंसी में है, शैशवावस्था में है, क्या उसके पास वो सुनने की एबिलिटी होती है, बोलने की एबिलिटी होती है? नहीं। फिर सुनने की एबिलिटी ये होती है या नहीं होती है, ये कुछ दिनों के अंतराल पर हम लोगों को पता चलता है, और उसी की वजह से कुछ बजने वाली, कुछ आवाज उत्पन्न होने वाली चीजें, उसके हाथ वगैरह में कुछ वो जो ब्रेसलेट्स दिए जाते हैं ताकि वो आवाज हो, कुछ बजे, या फिर कुछ ऐसे खिलौने जिससे आवाज हो, और उससे वो खिलौने को बजाकर उसकी जो भी हैं केयर टेकर, उसकी जो नर्सेज हैं, दादी हैं, नानी हैं, या उसकी मदर हैं, उसकी मम्मा हैं, वो बजाकर उस खिलौने को, उसको शेक करके, हिला करके, और उससे आवाज उत्पन्न होती है। तो क्या वो उस आवाज की तरफ वो बच्चा का ध्यान जाता है या नहीं? अगर जाता है, वो उस तरफ वो देखता है, वो रोना शांत हो जाता है, रोना बंद कर देता है, तो समझिए देयर इज द लिसनिंग स्किल उस बच्चे के पास है। ये ऑलरेडी नेचुरल है, गिफ्टेड बाय गॉड, गिफ्टेड बाय नेचर, ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, और वो फिर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सीख जाता है, वो लिसनिंग की कैपेसिटी उसको आ जाती है। बच्चा कुछ और बड़ा होता है, कुछ महीने बीत जाता है, वो वक्त, कुछ महीने बीतने के बाद, कुछ 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने का हो गया, तो फिर कुछ वो वर्ड्स बोलता है, उसके अपने कोड वर्ड्स होते हैं, पानी के लिए, वाटर के लिए। आप जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है वो वर्ड आपका उस बच्चे के वर्ड से मैच ना करे। मीन्स वो अपना वो खुद का अपना डिक्शन वो क्रिएट करता है, वो हर चीज का कुछ ना कुछ एक नई चीज नाम हो देता है। अब उसकी मदर उसको समझती है, वो ये बोल रहा है, इसका मतलब उसे क्या चाहिए, है ना? तो वो कुछ महीने के बाद वो भी स्पीकिंग सीखता है। जब तक स्पीकिंग कोई वर्ड नहीं बोलता था, जब कोई वो वर्ड नहीं बोलता था, बोलता है बच्चा पॉटी, ये समझ जाते हैं, मम पानी के लिए समझ जाते हैं, कुछ कुछ नए वर्ड्स बिल्कुल जो मम्मा भी नहीं उसकी, फिर वो मम्मा गौर करती है, ऑब्जर्व करती है, उसकी मदर गौर करती है, वो बच्चा कह क्या रहा है, अच्छा ये चीज उसे चाहिए, उसकी डिमांड यह है। तो यह भी जो लिसनिंग के बाद जो दूसरी उसकी बोलने की क्षमता आई, क्या वो कहीं किसी स्कूल में किसी ने उसे सिखाया? स्पीकिंग की क्षमता कैसे आई उसके अंदर? दैट इज नेचुरल।
लिसनिंग के ठीक बाद हमारा स्पीकिंग डेवलप हुआ। तो आज सबसे पहले ये मैं लेकर आपको चलना चाहूंगा स्पीकिंग इंग्लिश इस लिसनिंग स्किल पर, कि लिसनिंग की कार्य को के माध्यम से, लिसनिंग के माध्यम से सुन करके हम अंग्रेजी कैसे बोलना सीखेंगे। उसके बाद तब फिर रीडिंग की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले चले, हमने यहां सेकंड नंबर पे लिखा है एनरिच स्किल्स विद स्किल्स इन स्कूल्स। थोड़ा राइमिंग वर्ड्स का मैंने प्रयोग किया यहां, आप देख रहे हैं, स्किल्स, स्किल्स, स्कूल्स। एनरिच क्या है हमारा? Enrich is verb, skulls noun plural, and with is preposition. Skills is noun plural, and in preposition, and schools noun plural. पहले तो हम लोग ये समझें what the word enrich means. Enrich means to make something rich, to make something strong. मीन्स स्ट्रेंथन। सो आप स्ट्रेंथन करें किसे? स्कल्स को। स्कल्स, स्कल इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम दैट इज जस्ट at top our body, just at the top of our body, and inside the skull the brain is already kept safely by the nature. So this very area is the skull. So enrich skulls with what? With skills. In schools, I think this word is also familiar with you. इस वर्ड से भी आप परिचित हैं कि स्कूल किसे कहते हैं? द बिल्डिंग, द प्लेस वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स both of them go. But students go for learning something and teachers go there to make them learn something. शिक्षक वहां सिखाने जाते हैं और छात्र वहां सीखने जाते हैं। सो वो स्कूल्स, फिर ये स्कल हमारा कह रहा है एनरिच स्कल्स, अपने स्कल्स को एनरिच करें, मींस रिच बनाएं विद स्किल्स। किन चीजों से? स्किल्स से रिच बनाएं। ये स्किल क्या है? ये हम लोग यहां जस्ट थर्ड पॉइंट पे हम लोग देखने जा रहे हैं। स्किल्स क्या है? इन स्कूल्स में स्किल्स से रिच करें अपने स्किल्स को। नाउ स्किल्स हमारा ये है। स्किल के लिए मैं यहां लिखना चाहूंगा, स्किल कहते किसे हैं? स्किल हमारा जिसे आप कह ले सकते हैं हुनर। जैसे कोई व्यक्ति अगर कपड़ा सिलना जानता हो, दैट इज ए स्किल, एक उसके पास एक हुनर है। यदि वो मिट्टी के बर्तन बनाना जानता हो, अगेन अ स्किल। ओके, सो यदि वो ड्राइविंग करना जानता हो, एक स्किल है। यदि वो प्लम्बिंग का कार्य जानता हो, प्लम्बर है, वो प्लम्बिंग का कार्य जानता हो, तो निश्चित तौर पे उसके पास एक स्किल है। ये सारे स्किल्स जिनका मैंने अभी अभी उदाहरण दिया, दीज आर व्हाट? लर्न्ड। ये इन्हें सीखा जाता है। बट कुछ स्किल्स जिन्हें मैं यहां मेंशन करने जा रहा हूं, जो हर व्यक्ति को सीखना आवश्यक होता है। और कुछ स्किल्स तो वो सीखे या ना सीखे, गॉड, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो नेचर, वो प्रकृति, वो स्वयं खुद ब खुद क्रिएट कर देता है। मैंने अभी पूर्व का एग्जांपल में मैंने बताया था अभी कि वो उस शिशु को देख लीजिए जिसके पास लिसनिंग स्किल भी आ जाता है, और कुछ महीने, 8-10 महीने, 11 महीने, 12 महीने क्या होते होते उसके पास स्पीकिंग स्किल भी आ जाता है। सो कम ऑन हियर, कुछ स्किल्स जो हर व्यक्ति के लिए, हर लिटरेट नहीं, हर एजुकेटेड पर्सन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, वो उन स्किल्स के बारे में मैं चल रहा हूं। क्योंकि आज अगर मैं तो यही समझता हूं, कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं लोग, वो एमबीबीएस नहीं, एमएस है, वो डॉक्टरी के लाइन में, मास्टर इन सर्जरी है वो। यदि वो उन्होंने एमकॉम कर लिया, यदि उन्होंने एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, यदि उन्होंने एमटेक कर लिया, उन्होंने एमबीए कर लिया, मींस मास्टर लेवल की डिग्री, और नहीं तो डॉक्टरेट लेवल की डिग्री अगर उन्होंने एक्वायर किया, लेकिन अगर वो 4 स्किल्स जो फंडामेंटल स्किल्स हैं अगर उनके पास नहीं आए, तो वो सारी ऑल एकेडमिक डिग्रीज आर इनवैलिड एंड यूजलेस। मैं बस यही कहता हूं। सो कम ऑन, वो फंडामेंटल स्किल्स कौन सी हैं जिन्हें हर किसी को डेवलप करने की आवश्यकता है, जिन्हें एनरिच करने की आवश्यकता है, वो मैं यहां लिखना चाहूंगा।
The fundamental skills everyone needs to acquire proficiently are as follows. I am just going to write here. The fundamental skills everyone needs to acquire proficiently are as follows. वो निम्नलिखित हैं. द फंडामेंटल नीड्स वो बिल्कुल बेसिक नीड्स, वो बिल्कुल बेसिक स्किल्स, नॉट नीड्स, फंडामेंटल स्किल्स, वो बेसिक, वो आपके अंदर की कौशल, वो हुनर. एवरीवन नीड्स जिसे हर व्यक्ति को जरूरत होती है. टू एक्वायर करने की, प्राप्त करने की जरूरत होती है. कितनी मात्रा में? प्रोफिशिएंटली, एकदम अबंडेंटली, सफिशिएंटली, प्रचुर मात्रा में जिन्हें एक्वायर करने की आवश्यकता होती है. वो कौन कौन से वो स्किल्स हैं? तो आर एज फॉलोज, निम्नलिखित है. नंबर 1 पे चलता हूं मैं. नंबर 1 हमारा है लिसनिंग स्किल, LISTENING, लिसनिंग स्किल. नंबर 2 इज स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल. Number 3 is here reading skill, and number 4 is writing skill. ये 4 स्किल्स अगर आपके पास हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आई एश्योर यू, इफ यू एक्वायर ऑल दीज 4 स्किल्स, लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता, सुनने का हुनर, स्पीकिंग स्किल, बोलने की हुनर, रीडिंग स्किल, देखकर पढ़ने की हुनर, राइटिंग स्किल, खुद से लिखने की हुनर, आपके अपने सेंटेंसेस हो, आपके अपने वर्ड्स हो. यदि ये 4 स्किल आ गए ना तो गारंटेड आप जान लीजिए, whatever you will expect in your life will be certainly fulfilled, would be certainly acquired or achieved by you. निश्चित तौर पे आपके द्वारा वो सारी चीजें आपके द्वारा प्राप्त कर ली जाएंगी यदि 4 स्किल्स ही आए. इन 4 स्किल्स पर फिर कभी और विस्तार से हम लोग ये जानेंगे. वैसे फिलहाल लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल ये बिल्कुल नेचुरली अपने आप आ जाता है, नेचुरली होता है, नेचुरली, ये नेचुरली आता है. लिसनिंग, सुनने की क्षमता, जो मैंने अभी एक उदाहरण जो दिया, मैंने बताया अभी, वो एक छोटे से बच्चे, एक इन्फेंट को लेकर के मैंने बताया. तो लिसनिंग, वो सुनना, उसकी खुद ब खुद नेचुरल एक्टिविटी रही, नेचुरली उसने ऑब्टेन किया. और बोलने की क्षमता भी, बोलने का हुनर भी उसके अंदर खुद ब खुद आया. ये नेचुरली, इसको कोई सिखाया नहीं जाता है, नेचुरली ये अटेन करता है. रीडिंग की बात रही तो ये देख करके, चूंकि आपको कुछ कुछ सिंबल्स, हर एक कंट्री के अपने अपने लैंग्वेज हैं और प्रत्येक लैंग्वेज के लिए उनका क्या है, कुछ फोनिम्स हैं. प्रत्येक साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कुछ फोनिम्स हैं, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाले वीडियोस में मैंने पूर्व में मैंने चर्चा कर दी है. तो वो लेटर्स को जोड़ जोड़ करके कैसे ऐड कर करके हम वर्ड बनाते हैं और फिर कौन से वर्ड को कहां पुट करें ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर में, तो वो हमारा सेंटेंस फॉर्म बनता है. तो उसके हिसाब से हम रीडिंग स्किल और फिर राइटिंग स्किल, तो ये हमारा आर्टिफिशियली हम इसे डेवलप करते हैं. ये हमारा मैन मेड होता है, ये हमारा नेचुरली नहीं, ये आर्टिफिशियली होता है हमारा. इसे, ये रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल को हम सीखते हैं आर्टिफिशियली ढंग से, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली, कृत्रिम ढंग से हम सीखते हैं. आर्टिफिशियली कह सकते हैं, आर्टिफिशियली इसे सीखते हैं. तो ये लिसनिंग और स्पीकिंग की बात जो आप लोगों ने कमेंट दिया या फिर आप लोगों ने जो डिमांड किया कि स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड सर कुछ वीडियो क्लिप्स दिए जाए, तो उसी स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल पर नहीं कभी किसी ने कहा कि सर लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कोई वीडियो क्लिप दिया जाए और कुछ सजेशंस दिए जाए. नहीं, क्योंकि जो कुछ भी वीडियो क्लिप वही लोग देख रहे हैं जो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. निश्चित तौर पर स्पीकिंग के लिए दिक्कत हो रही है उनको, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिक्कत हो रही है. तो
चलिए मैं इसी स्पीकिंग के लिए ही मैंने यहां नंबर 4th पॉइंट पे यहां मेंशन किया है, स्पीक वर्ब का ही ये हमारा V4 फॉर्म है, स्पीकिंग। स्पीक के तहत 1 2 3 4 5 देयर आर 5 लेटर्स। अब ये स्पीक यदि आप चाहते हैं अपने अंदर स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना, तो 5 क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। अनडाउटेडली your speaking skill would be very easily obtained by you, and you will attain mastery over speaking. I assure you, I guarantee you. तो चले, S stands for क्या होता है हमारा? S stands for हो जाता है हमारा stress, STRESS, stress. P stands for pause, 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 and E stands for eloquence, eloquence here, and A stands for audibility, right? Audibility. And K stands for kindling, kindling. KINDLING, kindling. Kindling, that is kindling. These 5 qualities would have been should be already acquired by you, should be developed within you. So stress क्या है हमारा, pause क्या है, eloquence क्या है, audibility क्या है, kindling क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अब एक इंटरेस्टिंग फेज में। आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा होगा, ये 2 सेल फोन्स हैं, ये बटन वाले सेल फोन्स हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे आप स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड्रॉयड सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो नंबर है मेरे इस मोबाइल में, वो वही नंबर है जो मैंने वहां मेंशन किया है अपने वीडियो क्लिप्स में, और सबसे टॉप पे बिल्कुल एकदम फ्रंट में ही, फेस पे ही 9472929053। यदि मैं यहां पर सबसे पहले अपने इसी नंबर से मैं उस नंबर को मैं डायल करता हूं, सुनिएंगे आप क्या इंस्ट्रक्शन आता है, उस कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस क्या आती है। मैं डायल कर रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, 9472, sorry 7 has not been here mentioned, button, yeah, 947292 sorry 9472929053, 9472929053। और अब मैंने आपके सामने यहां इस नंबर को मैंने डायल कर दिया, सुनिए। नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। मैं फिर से डायल करना चाहूंगा। आपने सुना, कुछ आवाज आपको सुनाई पड़ी, इन इंग्लिश सबसे पहले आपको सुनाई पड़ी आवाज, और फिर उसके बाद आपको हिंदी में सुनाई पड़ी। मैं फिर से इस नंबर को मैं डायल कर रहा हूं, आप गौर से सुनेंगे, सुने आप। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। सुना आपने? इंग्लिश का इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया, मैं फिर से 3rd टाइम मैं आपको सुना रहा हूं। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। जो सेंटेंस अभी इस कंप्यूटर वॉइस जनरेटर वॉइस के रूप में जो अभी बोला गया, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, मैं उस इंस्ट्रक्शन की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं, और ये इंस्ट्रक्शन आपका यहां रहा। मैं इसे यहां लिखना चाहूंगा, द नंबर you have dialed is currently busy,
busy. Please try later. Please try later. और ये स्टेटमेंट ही आपको सुनाई पड़ी। ये बिजी क्यों बताया? चूंकि मैंने कहा ना, मैं उसी नंबर के सिम से, जिस नंबर को मैंने डायल किया था 9472929053 को मैंने जो डायल किया था, उसी सिम से, उसी पर नंबर पे मैंने डायल किया। तो क्या बताया? द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। ये सुना मैंने अक्सर। अब सुनने के बाद यहां हमारा स्पीक तो कर रहे हैं हम, इसे मैं चाहूंगा द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। और द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। क्या इस ढंग से बोला जाता है? नहीं ना। फिर से मैं बोल रहा हूं, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। नहीं ना। क्या किया जा रहा है? बीच बीच में पॉज लिया जा रहा है, रोका जा रहा है बोलकर, कुछ सेकंड्स नहीं बल्कि या कुछ मोमेंट्स के लिए। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली बिजी, इज करेंटली बिजी, इज करेंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। क्या देखा आपने? इस ढंग से बोला जा रहा है। यहां मैं स्लैश मार्क दे दे रहा हूं ये पॉज को बताने के लिए, प्लीज ट्राई लेटर, और लास्ट में ये फाइनल पॉज। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। सुना आपने? अब प्रश्न यह उठता है कि पॉज तो आपने सर बताया, अब किसी किसी वर्ड्स पर अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हम जो बोल रहे हैं, क्या हम ये द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर, क्या इस ढंग से बोला जा रहा है? नो। क्या बोला जा रहा है? द नंबर, देख रहे हैं द को, क्या द स्ट्रेस देकर के बोला जा रहा है? क्या एक्सेंट के साथ जोर देकर बोला जा रहा है हमारा? बिल्कुल नहीं। द को स्लाइटली बोला जा रहा है क्योंकि ये अनएक्सेंटेड वर्ड है, ये अनस्ट्रेस्ड वर्ड है हमारा। नंबर क्या है हमारा? दिस इज नाउन, स्ट्रेस्ड वर्ड। मैंने पहले भी बताया था स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड की कौन कौन से हमारे, ये द हमारा डिटर्मिनर है, दिस द इज हियर डिटर्मिनर, और ये डिटर्मिनर हमारा आर्टिकल किसके तहत आ जाता है? अनस्ट्रेस्ड वर्ड के तहत। सो द नंबर को स्ट्रेस किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, स्पीक करने में स्ट्रेस की भी बहुत आवश्यकता है। द नंबर यू हैव डायल्ड, द नंबर यू हैव डायल्ड, यू प्रोनाउन हमारा स्ट्रेस्ड वर्ड है। मैं स्ट्रेस के लिए सिंबल दे रहा हूं, अनस्ट्रेस के लिए यह सिंबल, स्ट्रेस के लिए मैं यह सिंबल दे रहा हूं। यू स्ट्रेस्ड have dialed is current, sorry, is wrong here, is here auxiliary verb, unstressed word. Currently adverb, is busy adjective, stressed, please is exclamation, unstressed word, please try, stressed, later adverb. So here you pronoun have auxiliary verb, dialed V3 form, is auxiliary verb, currently adverb, and busy adjective, please is exclamation, exclamatory word, EXCLAM, exclamation, exclamatory word. Try is verb V1, later is here adverb. Okay, later, later, latest, ADV2, this is the comparative form, later, please try later. Okay, so the number you have dialed is currently busy, please try later. I would like to mention here the symbol, this crescent symbol shows what? Unstressed word, unstressed word. This symbol shows unstressed word, and this symbol shows a stressed word, stressed word, stressed word.
अब अनस्ट्रेस्ड वर्ड में आने वाले क्या क्या हो जाते हैं हमारे? नंबर 1 आर्टिकल्स आ जाता है, आर्टिकल्स। और क्या आ जाते हैं हमारे? ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। नंबर 2 में क्या आ जाता है? नंबर 3 में ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बाद हमारा आ जाता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। नंबर 4 कंजंक्शन, कंजंक्शन। एंड नंबर 5 इंटरजेक्शन, या जिसे एक्सक्लेमेशन कहते हैं, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। और एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, एक्सक्लेमेशन। ये सारे 5 वर्ड्स हमारे अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स के तहत आ जाते हैं। स्ट्रेस्ड वर्ड्स में हमारे आ जाते हैं नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। नंबर 4 वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब आप कह सकते हैं, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब आप कह सकते हैं, एक्शन और मेन वर्ब। ओके। एंड नेक्स्ट एडवर्ब, एडवर्ब। ये 5 हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, मेन वर्ब एंड एडवर्ब, ये 5, और ये 5 अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, और अक्सर मैं इस टेबल की बात मैं करता हूं, और मैंने पूर्व के भी वीडियो क्लिप में मैंने किया है। तो आपने जिस स्टेटमेंट को सुना आपने मोबाइल से, द नंबर यू हैव डायल्ड, the number you have dialed is currently busy। देख रहे हैं किन किन वर्ड्स पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, स्ट्रेस। यह सीखना है आपको सुनने के बाद, फिर आपको कहां कहां पॉज लेना है यह जानना है। यह नहीं कि द नंबर यू हैव डायल्ड इज, देख रहे हैं कहां कहां मैं पॉज ले रहा हूं, द नंबर यू के बाद मैं पॉज ले रहा हूं, हैव डायल्ड इज के बाद मैं पॉज ले रहा हूं, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। मैं बोल तो वही सेंटेंस रहा हूं, बट गलत जगह पे मैं पॉज लेने की वजह से सेंटेंस मेरा हमारा मींस दैट इज ब्लंडर, वो हमारा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सो द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। तो आपने स्ट्रेस और पॉज को समझ लिया। इलोक्वेंस क्या है हमारा? इलोक्वेंस हमारा जेस्चर है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशन, इलोक्वेंस। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली बिजी, लुक एट माई फेस एंड माई फेशियल एक्सप्रेशन। The number you have dialed is currently busy. Please try later, later. This shows eloquence. Means how you express your words. This is considered as eloquence. कितना eloquent, eloquent adjective, eloquence is noun. कितने clear way में, कितने apparent अंदाज में आप अपनी बात को कह पाते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो दिस इज ऑडिबिलिटी। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, आपके शब्द की फ्रीक्वेंसी, आपके वर्ड्स की, जो कौन से शब्द की हम कितनी ऊंची आवाज में बोलें कि ताकि वो ऑडिबल हो सके, उसकी ऑडिबल श्रव्यता उसकी अच्छी हो, ऑडिबिलिटी श्रव्यता। सो वो ऑडिबिलिटी आपकी, वो शब्दों को उसका श्रवण किया जा सके, सुना जा सके, उसकी ऑडिबिलिटी अच्छी हो। यदि आप बहुत लो पिच टोन में बोल रहे हैं, बहुत हल्की बात बोल रहे हैं, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। आई थिंक everyone sitting in front of you, even very near, the people sitting very near you would not be able to understand or will not be able to listen to whatever you speak if your audibility is not in the proper frequency. So now here audibility, and K is kindling. Kindling is also very much important to be a fluent speaker and to be a good speaker. Okay, so kindle verb से बना हमारा kindling.
काइंडल वर्ब मीन्स टू रेज इंटरेस्ट, टू क्रिएट इंटरेस्ट, टू बर्न समथिंग. काइंडल मीन्स जलाना. काइंडल द कैंडल विद दिस कैंडल, काइंडल द कैंडल विद दिस कैंडल. उस कैंडल को इस कैंडल से काइंडल कर दो, जला दो. कैंडल जलाना, उसको जलाना. लेकिन काइंडल वर्ब सेकंड मीनिंग आप जब देखेंगे डिक्शनरी में आपको यह भी मिलेगा कि टू क्रिएट इंटरेस्ट. आपकी आवाज ऐसी हो, आपका बोलने का अंदाज ऐसा हो कि सुनने वाले बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध होकर के, बिल्कुल हिप्नोटाइज्ड होकर के, बेविस्ड होकर के, एकदम बस पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ आपके एक एक शब्द और शब्दों के प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन को सुनते रहें. सो ये रहा आपका स्पीक के तहत. अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया इस ढंग से बोलने की. अब प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? क्या आप ये एक सेंटेंस को बोलना अगर आपने सीख लिया इसी प्रॉपर स्ट्रेस, पॉज और इलोक्वेंस और ऑडिबिलिटी और कैंडलिंग के साथ, तो फिर आप एक अच्छे स्पीकर हो जाएंगे? नो. अब इसी पैटर्न पर आपको मैं लेकर चल रहा हूं. द नंबर की जगह हम कोई और वर्ड लिखेंगे. सपोज द चेयर, नंबर भी हमारा नाउन है, चेयर भी हमारा नाउन है. तो द चेयर यू हैव डायल्ड इज करेंटली बिजी. अच्छा, चेयर को डायल किया जाएगा. वो चेयर जिसको आपने डायल किया है, डायल्ड निश्चित तौर पे यहां हमारा डायल्ड हमारा सुटेबल नहीं है. जैसे अगर हम नंबर, ये मैं स्ट्रक्चर की ओर चल रहा हूं लेकर के, स्ट्रक्चर ड्रिल्स. आपने अगर एक सेंटेंस को सुना, सीखा, तो अब उस स्ट्रक्चर में आने वाले वर्ड्स की जगह हम उसके सब्स्टिट्यूट्स, उसकी जगह पे कोई दूसरे वर्ड को हम पुट करेंगे और उसके हिसाब से जो आगे चेंजेस डिमांड कर रहा है हम उन चेंजेस को करते जाएंगे. सपोज कीजिए अब यहां मैंने क्या लिखा, द चेयर. मैं यहां लिखना चाहूंगा हियर दिस स्पेस इज फॉर आवर practice. So the chair you have, the chair you have dialed. क्या डायल्ड होगा हमारा वहां सुटेबल? द चेयर यू हैव डायल्ड, डायल तो नंबर को किया जाता है, नहीं. द चेयर यू हैव ब्रोकन, देख रहे हैं आप, डायल्ड हमारा V3 फॉर्म आ रहा है, तो ब्रेक या ब्रोक या ब्रोकन V3 फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का. क्यों यहां प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आ रहा है? और फिर ये प्रिंसिपल क्लाउज के तहत द नंबर इज करेंटली बिजी, ये प्रिंसिपल क्लाउज और ये यू हैव डायल्ड हमारा एडजेक्टिव क्लाउज हो गया. क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम लोग आज नहीं, क्योंकि आप बस 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो होता है सर, इट इज टू लार्ज सर, बट सर इट इज इंटरेस्टिंग. आपका यहां भी कमेंट आता है. तो फिर चलें हम लोग यहां द चेयर यू हैव, इसी पैटर्न पे, इसी स्ट्रक्चर पे जो सेंटेंस आपने अभी मोबाइल से सुना, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर. सो हियर इन प्लेस ऑफ द वर्ड नंबर आई हैव मेंशन्ड हियर द चेयर. द चेयर यू हैव डायल्ड, नो. द चेयर you have purchased, the chair you have broken, the chair you have painted, some any V3 form. So I am going to write here the chair you have purchased. Purchased means bought. The chair you have purchased is currently अब क्या मेंशन करना है? करंटली के बाद हमारा बीजी आ रहा है. The chair you have purchased is currently means at the present time, currently is that verb, is broken. ये तो broken भी लिख सकते हैं हम, यहां V3 फॉर्म हमारा एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है. V3 एडजेक्टिव is currently broken और is currently useless. You may write here adjective useless. Useless is adjective. आपका बिल्कुल सेम वही सारे वर्ड्स आ गए. द नंबर की जगह द चेयर नाउन, यू हैव डायल्ड की जगह यू हैव परचेज्ड, इज करेंटली बिजी की जगह हमारा हो गया इज करेंटली यूजलेस. द चेयर यू हैव परचेज्ड इज करेंटली यूजलेस. अब आगे यूजलेस के बाद प्लीज ट्राई लेटर का क्या हो जाएगा? प्लीज थ्रो इट अवे. आपने देखा यहां थ्रो इट अवे. यहां देखा आपने प्लीज हमारा एक्सक्लेमेशन आ रहा है. थ्रो इज योर वर्ब, इट इज योर द प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव फॉर्म में प्रोनाउन आ रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में. अवे इज योर एडवर्ब. थ्रो इट अवे. ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया एक्सरसाइज के तहत जो समथिंग का था. हमारा चेयर समथिंग है. यहां हम चाहे तो somebody भी मेंशन कर सकते हैं. द चेयर की जगह द chairperson or the
द मैन, यह भी लिख सकते हैं द मैन यू हैव परचेस्ड। अब मैन को खरीदा तो नहीं आपने, द मैन यू हैव परचेज, नो, द मैन यू हैव कंसल्टेड और द मैन यू हैव मेट, द मैन यू हैव मेट, और यू मे राइट हियर कंसल्टेड, द मैन यू हैव कंसल्टेड, वो व्यक्ति जिससे आप मिले हैं, यू हैव कंसल्टेड इज करेंटली की जगह प्रेजेंटली भी लिख सकते हैं, प्रेजेंटली बिजी भी लिख सकते हैं, इज बिजी, और द मैन यू हैव कंसल्टेड इज प्रेजेंटली बिजी और इज प्रेजेंटली इल और इज प्रेजेंटली इंजर्ड। ओके, इस तरह से ये बिजी एडजेक्टिव, इल एडजेक्टिव, इंजर्ड एडजेक्टिव, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आए। प्लीज serve him attentively or carefully or passionately, carefully, ये आपको देखना है। अब ये एडवर्ब आ गया हमारा पैशनेटली मीन्स एकदम भावनात्मक रूप से, इमोशनली। तो इस ढंग से आपने क्या सीखा? फिर नंबर 2 में द चेयरपर्सन और द मैन यू हैव कंसल्टेड, द मैन यू हैव कंसल्टेड, वो व्यक्ति जिससे आपने कंसल्ट किया है, इज प्रेजेंटली बिजी या इज प्रेजेंटली इल और इज प्रेजेंटली इंजर्ड, वो व्यक्ति घायल है भी। प्लीज सर्व हिम, उस व्यक्ति की आप सेवा करें पैशनेटली, बिल्कुल आप एकदम दिलो जान से, हार्टिली आप उसकी सेवा करें, केयरफुली आप सावधानी पूर्वक उसकी सेवा करें। तो आपने यह देखा, यह प्रैक्टिस आपको करनी होगी। और आप चाहे जहां भी हो, whether you are in the bathroom or you are walking or you are jogging in the park or you are doing something, every time, everywhere you have to frame sentences on the structure of the sentence you have listened through the mobile. So learn speaking English through listening का ये टारगेट हमारा आज यहां ओवर होता है। अब उस स्पीकिंग के तहत हम किन किन चीजों का हम डिस्क्रिप्शन, किन किन चीजों के बारे में हम स्पीक करते हैं, ये अगले वीडियो क्लिप में हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग डाइस पर चर्चा करेंगे, DICE, डाइस। यदि डाइस आपने, डाइस जो लूडो वगैरह में खेलने में जो आप पासा को फेंकते हैं, दैट इज डाइस, तो पासा को, डाइस को आप कास्ट करते हैं, उसी DICE डाइस की बात मैं कर रहा हूं। तो उस डाइस, वो डाइस आपकी बहुत मदद करेगा आपकी स्पीकिंग स्किल को इनहांस करने में। तो फिर ठीक है, आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, मेरा जो टारगेट था, ये फुलफिल्ड होता है। लर्न स्पीकिंग इंग्लिश थ्रू लिसनिंग, और उसके तहत आपको मैंने ये मोबाइल से एक स्टेटमेंट सुनने के बाद और उसको मैंने लिखा, और फिर इस ढंग से उस पर कई और सेंटेंसेस, क्या 2 ही सेंटेंसेस बन सकते हैं इस पे? नो, means as many sentences may be framed using this structure as you can. It is not restricted that only 2 sentences will be only possible. No. So try to frame more and more sentences so that you may have command, you may have master your speaking English thoroughly. तो चलिए, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, so here the board is already before you, clearly before you. Now अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं आज के इस वीडियो क्लिप को यहीं ओवर करते हुए। यह वीडियो क्लिप आपके लिसनिंग स्किल को इनहांस करने में मददगार कितना साबित हुआ, ये प्लीज जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपके
कमेंट्स का मैं बहुत ही पैशनेटली वेट कर रहा होता हूँ. रियली आई वुड लाइक टू अश्योर यू, आई वुड लाइक टू कन्विंस यू दैट आई एम रियली वेटिंग फॉर द कमेंट्स पैशनेटली. थैंक यू. दैट्स ऑल.